Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 18 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from CAT 23 slot 1 paper and the set says a visa processing office VPO accepts visa application in 4 categories: US, UK, Shenzhen and others. The applications are scheduled for processing in 20-15 minute slots starting at 9 a.m. and ending at 2 p.m. 10 applications are scheduled in each slot. There are 10 counters in the office, 4 dedicated to US application and 2 each of UK application, Shenzhen application and other applications. Applicants are called in for processing sequentially on a first come first serve basis whenever a counter gets freed for their category. The processing time for an application is the same within each category, but it may vary across the categories. Each US and UK application requires 10 minutes for processing time. Depending on the number of application in category and time required to process an application for that category, it is possible that an applicant for a slot may be processed later. On a particular day, Ira, Vijay, and Nandini were scheduled for Shenzhen visa processing in that order. They had a 9:15 a.m. slot but entered the VPO at 9:20 a.m. When they entered the office, exactly 6 out of the 10 counters were either processing or application or had finished processing one and ready to start processing the next. Mahira and Osman were scheduled in the 9:30 a.m. slot on that day for visa processing in the others category. The following additional information is known about that day. All slots were full. The number of US application was the same in all the slots. The same was true for all three categories. 50% of the applications were US applicants. All applicants except Ira, Vijay, and Nandini arrived on time. Vijay was called to a counter at 9:25 a.m. ठीक है. क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं. हाउ मेनी यूके एप्लीकेशंस वर शेड्यूल्ड ऑन दैट डे? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ that time in 5 minutes nearest to the integer required to process all application in the other category on that day? Which of the following is the closest to the time when Nandini's application process got over? Which of the following statement is false? When did the application processing for all US application get over on that day? ठीक है. स्केड्यूलिंग का एक सेट है जहाँ पे अपने पास वीपीओ का सेटअप है, यानी कि वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिस का, और कुछ लोग हैं जो कि अपना वीज़ा प्रोसेस कराने के लिए आ रहे हैं, और 4 अलग अलग काउंटर्स हैं, सॉरी 10 अलग अलग काउंटर्स हैं, और वो 4 अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं: यूएस, यूके, शेंजन एंड अदर्स. ठीक है. अब ऐसे सेट्स क्या होते हैं जनरली, अगर ध्यान दो तो इसके अंदर ना जो पहला पैसेज है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एंड फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है. तो ऐसे सेट्स को कैसे करना चाहिए? छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को पहले पिक करके अपने हिसाब से एक रफ वर्क बनाओ एंड देन स्टार्ट थिंकिंग कि मैं और क्या कर सकता हूँ. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. अब वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिस एक्सेप्ट इन 4 कैटेगरीज. ठीक है. कैटेगरीज कौन सी हैं? यूएस है, यूके है, शेंजन है और अदर्स है. ठीक है. अच्छा. The applications were scheduled for processing in 20-15 minute slots at 9 a.m. and ending up at 2 p.m. 20 slots कैसे? 9 से 9:15, 9:15 से 9:30, 9:45 और 10. यानी कि 1 घंटे में 4 स्लॉट है. और कितने ऐसे घंटे पे काम होने वाला है? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी कि 5 घंटे पे होना. और हर घंटे में 4 स्लॉट है, तो 20 स्लॉट कहाँ से निकल रहा है ये समझ आ गया. ठीक है. तो 20-15 मिनट्स का स्लॉट होने वाला है. 20 स्लॉट इंटू 15 मिनट्स. ठीक. 10 एप्लीकेशन आर शेड्यूल ऑन इन ईच स्लॉट. हर स्लॉट में 10 एप्लीकेशन को शेड्यूल करा गया है. टोटल कितने स्लॉट थे अपने पास? 20 स्लॉट थे. ठीक है. यानी कि हर स्लॉट पे अगर 10 एप्लीकेशन है तो टोटल 200 एप्लीकेशन है जिसका अपने को यहाँ पे पूरा शेड्यूल करना है. ठीक है. इनके पूरे चीज़ों को फिगर आउट करना है. अच्छा. देर आर 10 काउंटर्स इन दी ऑफिस. टोटल यहाँ पे 10 काउंटर है. ठीक. 4 डेडिकेटेड टू यूएस एंड 2 ईच ऑफ यूके एप्लीकेशन, शेंजन एप्लीकेशन एंड अदर एप्लीकेशन. ठीक है. यूएस के 4 हैं, यूके के 2 हैं, शेंजन के 2 हैं और अदर्स के भी 2 हैं. तो टोटल आपके पास 10 एप्लीकेशन काउंटर हैं. एप्लीकेंट्स आर कॉल्ड इन फॉर प्रोसेसिंग सिक्वेंशली ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. बेसिकली फीफो का लॉजिक लग रहा है, मतलब जैसे जैसे लोग आते आ रहे हैं वैसे वैसे उनको हम एकोमोडेट करते हैं और उनके ये जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट करके उनको हटाते जा रहे हैं. द प्रोसेसिंग टाइम फॉर एन एप्लीकेशन इज द सेम विद इन ईच कैटेगरी. जो प्रोसेसिंग टाइम है वो यूएस की वो सेम होने वाली फॉर ऑल दी एप्लीकेशन. ठीक है. मान लो पूरे दिन में यूएस ने 50 एप्लीकेशन अटेंड करे तो 50 के 50 का जो टाइम है वो सेम होने वाला है. बट इट में वेरी अक्रॉस द कैटेगरी. बट ये वेरी कर सकता है अक्रॉस द कैटेगरी, यानी कि यूएस का शायद 20 मिनट हो, यूके का शायद 25 मिनट हो, शेंजन का शायद 30 मिनट हो, अदर्स का शायद 35 मिनट हो. ऐसा कुछ कहना चाह रहा है. ठीक है.
द प्रोसेसिंग टाइम फॉर एप्लीकेशन इज सेम विद इन ईच कैटेगरी बट इट में वेरी अक्रॉस द कम कैटेगरीज. ईच यूएस एंड यूके एप्लीकेशन रिक्वायर्स 10 मिनट. ठीक है जी, यहाँ पे ले लेते हैं, इनका दिया हुआ 10 मिनट इनका है, 10 मिनट इनका है. अच्छा, depending on the number of application in the category and time required to process an application for that category, it is possible that an application applicant for a slot may be processed later. ठीक है, डिमांड के हिसाब से ये देखा जाएगा. मतलब ऐसा हो सकता है कि लेट्स से किसी एक स्लॉट में यूएस के जो 10 एप्लीकेंट हैं, 10 में से 6 एप्लीकेंट यूएस के होगा, एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं. ठीक है, अगर 6 होंगे तो 9 बजे, 9 से 9:10 तक काउंटर नंबर 1 2 3 4 ऑक्यूपाइड है, और मतलब एप्लीकेशन नंबर 1 2 3 4 और एप्लीकेशन नंबर 5 को कब मिलेगा, 9:10 पे. तो वही ये समझाना चाह रहा है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबका उसी टाइम पे शुरू हो. ऐसा भी हो सकता है कि भाई लेट्स से मनवीर टर्न्ड अप फॉर दैट, मनवीर अपने टाइम पे पहुंचा बट मनवीर के आगे वाले ऑलरेडी वो वहाँ पे बैठे हुए और वो ऑक्यूपाइड है, तो मनवीर विल हैव टू वेट. तो ज़रूरी नहीं कि 9 बजे का तो 9 बजे ही शुरू हो. ठीक है. On a particular day, Ira, Vijay and Nandini were scheduled to for Shenzhen वीज़ा प्रोसेसिंग इन दैट ऑर्डर. ठीक है, ये 3 लोग आए और उसी ऑर्डर में आए. ईरा, विजय और नंदिनी किसके लिए आए हैं, शेंजन के लिए आए हैं, इन दैट ऑर्डर. दे हैड अ 9:15 स्लॉट बट एंटर्ड दी वीपीओ एट 9:20. ठीक है, इनका स्लॉट था 9:15 का, बट ये आए कितने बजे, 9:20 पे ये लोग पहुंचे. ठीक है, यानी कि ये लोग 5 मिनट लेट पहुंचे. ठीक. अच्छा, when they entered the office exactly 6 out of the 10 counter were either processing application or had finished processing one and ready to start processing next. ये लोग जब तीनों आए 9:20 पे, ठीक है, 9:20 पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, 6 काउंटर ऐसे हैं जो कि या तो एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं. ठीक है, और 4 काउंटर ऐसे थे जो एकदम वैकेंट बैठे हुए थे. ठीक, अनऑक्यूपाइड थे, मतलब उनके पास कोई काम नहीं था, या तो वो खाली बैठे थे और उनके पास कोई भी वेटिंग के लिए कोई बैठा नहीं था. पर 6 ऐसे थे जो या तो प्रोसेस कर रहे थे या कोई वेट कर रहा था. जैसे एग्जांपल के लिए इनमें से देखो यहाँ पे हो सकता है यूएस और यूके वालों में से, मतलब लेट्स से यूएस के अंदर ऐसा हुआ कि 9:20 पे 9:10 पे खत्म हुआ और 9:20 पे भी एक और शुरू हो गया. ठीक है, तो जब ये एंटर किए तो इन्होंने देखा कि 9:20 पे एक हट रहा है और यूएस काउंटर पे एक और बैठ रहा है. ऐसा हो सकता है. ठीक है, और 4 ऐसे हैं जो कि अनऑक्यूपाइड थे, मतलब एकदम ही बोलो जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने देखा कि बोलो चारों लोग खाली बैठे हुए हैं. ये भी लिख लिया हमने. अच्छा, और पढ़ते हैं. अब कहाँ पे थे, ठीक. Mahira and Usman were scheduled in the 9:30 AM on that day for visa processing in other categories. ठीक है, अदर्स के लिए 2 बंदों का नाम दिया गया, जिनका नाम दिया गया माहिरा और उस्मान. ये लोग को कितने बजे बुलाया गया, 9:30 पे बुलाया गया. ठीक है, 9:30 पे ये लोग जब आए तो इनका क्या हुआ अभी आगे देखते हैं. ठीक है, फिर और पढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है. द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट दैट डे, ऑल स्लॉट्स वर फुल. पूरे स्लॉट जो है वो पूरे भरे पड़े थे. ठीक है जी, बढ़िया. फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ यूएस एप्लीकेशन वाज द सेम इन ऑल द स्लॉट. हर स्लॉट में जो यूएस एप्लीकेशन थे सेम थे, यानी कि पहले 15 मिनट में लेट्स से दे रहा है ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो हर 15 मिनट पे ए नंबर ही होंगे. यानी कि पूरे दिन की बात करें तो 20 ए बेसिकली हम कह सकते हैं. मतलब हर स्लॉट में अगर ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन है तो 20 स्लॉट में 20 ए एप्लीकेशन होगा. द सेम वॉज ट्रू फॉर अदर 3, मतलब ये सबके लिए है. यानी कि यूएस अगर पहले स्लॉट में 4 हैं तो हर स्लॉट में 4 आने वाले हैं, यूके के 2 है तो हर स्लॉट में 2 आने वाले हैं, इनका 2 है तो हर स्लॉट में 2 आने, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है. ठीक, थोड़ा और पढ़ते हैं. 50% ऑफ द एप्लीकेशंस वर यूएस एप्लीकेशन. अच्छा, 50% जो है यूएस के थे, यानी कि 200 एप्लीकेशन थे जिसमें से 100 एप्लीकेशन तो यूएस के थे. ठीक है, अगर 100 यूएस के थे यानी कि 20 स्लॉट में यूएस ने 100 एप्लीकेशन निपटाए. अभी हमने बात करी थी कि हर स्लॉट में सेम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं और पूरे दिन में 100 एप्लीकेशंस अटेंड किए, यानी कि पर स्लॉट 5 एप्लीकेशन इनके पास होंगे, तभी वो हो रहा है 20x5. ठीक, अब इन 10 में से अपने को पता चल गया 5 तो यूएस के. ठीक, अच्छा, और पढ़ते हैं. ऑल एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट ईरा, विजय, नंदिनी अराइव्ड ऑन टाइम. ईरा, विजय और नंदिनी को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो अपने जो स्केड्यूल टाइम है वो उतने बजे पहुंचे. विजय वॉज कॉल्ड टू अ काउंटर एट 9:25 AM. विजय को 9:25 पे काउंटर पे बुलाया गया. ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है. जितनी इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस कर सकते थे यहाँ से हमने इतनी निकाल दी है. ठीक है, कैसे परस्यू करा जाए ऐसे सेट को, एक बार क्वेश्चंस पे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ और उस हिसाब से दिमाग लगाना शुरू किया जाए, या
थोड़ा बहुत जैसे तुम्हें दिख रहा है कि यार ये इन्फॉर्मेशन है ईरा विजय वाली, तो शायद शिंजिन के बारे में निकलेगा, शायद यहाँ पे निकलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी यूके एप्लीकेशंस वर शेड्यूल ऑन दैट डे, ठीक है। किसी एक मिनट का अगर अपने को पता चल जाए किसी एक स्लॉट में कितने हैं, तो वहां से निकल सकता है। जैसे अपने को पता है किसी एक स्लॉट में 10 में से 5 तो यूएस के हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी कितने होने वाले हैं वो अगर हम फिगर आउट कर ले तो यहाँ से काम बन सकता है। थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में ना, ठीक है। अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अपने को इन्फॉर्मेशन है किसी एक स्लॉट पे अगर हम बात करें, एक इन्फॉर्मेशन है कि 9:15 पे ये 3 लोगों का आने वाला था शिंजिन पे, ईरा विजय और नंदिनी 9:15 पे आए थे, यानी कि 9:15 में ये 3 आ रहे, तो मतलब हर स्लॉट में बेयर मिनिमम 3 आएगा ही आएगा। यानी कि हम बात करें 3 जो है शिंजिन के आने ही आने हैं, दिस इज बेयर मिनिमम, ठीक। हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन दो तो लिखा हुआ है अदर्स का 9:30 पे 2 आए हैं। अगर 9:30 वाले स्लॉट में अदर्स के लिए 2 आए, यानी कि हर स्लॉट में मिनिमम 2 तो आ ही रहे, यानी कि अदर्स के 2 भी आएंगे। विद दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट आई गॉट टू नो कि 10 एप्लीकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे ही होने वाला है 5-3-2 में, यानी कि यूके के लिए 0 एप्लीकेशन होने वाले हैं, ठीक। ये पॉइंट समझ आ गया। तो यूके के 0 एप्लीकेशन होने वाले हैं, ठीक। शिंजिन के अपने को पता है 3 एप्लीकेशन पर स्लॉट आने वाले हैं, तो यानी कि पर स्लॉट अगर 3 है तो पूरे दिन में 20 स्लॉट है, यानी कि 60 एप्लीकेशन आए होंगे। एंड अदर्स के पर स्लॉट 2 आने वाले, यहाँ पे 40 आए होंगे। हमने इनिशियली इसको मिनिमम वैल्यू लेके देखा, बट मिनिमम पे ही एडिशन अपना 10 पहुंच गया, तो मेरे को पता चल गया कि यार यही पे है जो कहानी चलने वाली है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो पहला वाला क्वेश्चन तो एकदम फ्री का मिल गया कि 0 होने वाला है, ठीक। अब इसके बाद देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अदर कैटेगरीज ऑन दैट डे। यहाँ पे अपने को पहुंचना पड़ेगा, अदर्स का टाइम निकालना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को इसका दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाए, चलो उसको सोचते हैं, ठीक है। थोड़ा जगह बना लेते हैं इसके लिए। चलो शिनजेन के बारे में निकालते हैं। शिनजेन के बारे में अपने को क्या पता है, इनकी कहानी शुरू होती है 9 बजे। 9 बजे आते ही इनके पास 3-3 लोग आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि काउंटर 1 और काउंटर 2 बना लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ होगा, पहला बंदा आया 9 बजे, दूसरा बंदा आया 9 बजे, फिर तीसरा बंदा आया कितने बजे आया नहीं पता, ठीक है। फिर 9:20 पे ये लोग आए, क्या नाम है इनका, ईरा विजय और नंदनी, और इसी ऑर्डर में आए, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि ईरा विजय एंड नंदनी वर शेड्यूल्ड फॉर शिंजिन विजय प्रोसेसिंग इन दैट ऑर्डर, ठीक है। और वो इसी ऑर्डर में बैठेंगे भी, क्योंकि यहाँ लिखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको बैठाना भी है, यानी कि ईरा विजय और नंदिनी ही बैठे होंगे, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी। पहला ये हो सकता था कि जैसे ईरा और विजय 9:20 पे आए, इन्होंने देखा दोनों काउंटर खाली हैं, ठीक है। तो क्या होता, ईरा और विजय दोनों यहाँ पे बैठ गए होते। लेकिन उस केस में ऐसा होता कि विजय का जो टाइम है वो 9:20 पे शुरू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि विजय का जो टाइम है वो 9:25 पे शुरू हुआ था। अच्छा, अगर 9:25 पे शुरू हुआ था, मतलब ईरा और विजय दोनों साथ में नहीं बैठे होंगे, मतलब ये जो साथ में अपना पूरा प्रोसेसिंग शुरू नहीं किए होंगे। यानी कि ऐसा रहा होगा कि भाई जब ईरा आई तो उसको एक काउंटर खाली मिला, और वो काउंटर कौन सा खाली मिल सकता था, यही वाला मिल सकता था, ठीक। और विजय को 9:25 पे ये वाला काउंटर मिला, ये वाला काउंटर खाली मिला। और फिर नंदिनी आई, उसको कितने बजे मिला, थोड़ा ये फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक। ये पॉइंट समझ आया। यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकते थे, वहां से हमने चीज़ों को फिगर आउट करा। पहला सिचुएशन हो सकता था कि दोनों आए, दोनों को एक बार मिल गया, बट अपने को क्योंकि इन्फॉर्मेशन विजय के बारे में दे रखी है कि वो 9:25 पे ही बैठता है, तो वहां से हमने फिगर आउट कर लिया कि भाई 9:25 की वजह से वो दोनों साथ में नहीं बैठे होंगे। ईरा ने पहले शुरू कर दिया होगा, क्योंकि विजय से पहले वो आई है, तो ईरा यहाँ पे बैठी होगी और विजय यहाँ पे 9:25 पे बैठा होगा, ठीक। अब यहां पे ये देखने की जरूरत है कि ये वाला जो काउंटर नंबर 1 है, इसने क्या करा, 25 मिनट बाद विजय को बुलाया, यानी कि 25 मिनट में इसने क्या करे, 2 एप्लीकेशन को फिगर आउट करा। यानी कि पर एप्लीकेशन ये कितना टाइम ले रहा होगा, ये ले रहा होगा 12.5 मिनट, ठीक। 12.5 मिनट ले रहा है, यानी कि ये 9 बजे शुरू किया और इसने 9:12 और 30 सेकंड पे खाली कर दिया। 9:12 और 30 सेकंड पे खाली कर दिया। फिर एप्लीकेशन नंबर 3 को इसने बुला लिया, जो कि
9:25 तक इसने करा एंड ये वाला बंदा खाली बैठा हुआ था। व्हेन ईरा केम 9:20 पे तो इसने अपना प्रोसेस कराना शुरू किया और कब तक कराया होगा 9:32.5 तक। ठीक, विजय ने कब तक कराया होगा 9:25 है तो 9:25 से लेके 12.5 मिनट और ऐड कर लेते हैं यानी कि 9:37.5 तक। वेर एज नंदिनी ने कब तक कराया होगा 9:32.5 से फर्दर 12.5 यानी कि 9:45 तक नंदिनी ने अपना पूरा प्रोसेस कराया होगा। ठीक, हमने इतनी इंफॉर्मेशन से शेंजन के लिए निकाल दिया। अच्छा, सिमिलरली हम अदर्स के लिए निकाल सकते हैं क्या, वो भी सोचते हैं। अदर्स के लिए क्या करा जा सकता है वो दिमाग लगाते हैं। अब अपने पास अदर्स के लिए इंफॉर्मेशन क्या है, अदर्स के लिए इंफॉर्मेशन अपने को यही दी हुई है ना कि M और O है जो कि 930 है, बस इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन है, जैसे जब भी ये जो कॉम्प्लेक्स सेट होते हैं इसके अंदर ना हर इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन को कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर हमने ध्यान करो, हमने एक इंफॉर्मेशन ये वाली है, इसको अभी तक यूज़ नहीं करा, इसके अलावा हमने ये यूज़ कर लिया है, ये वाली अभी यूज़ नहीं आएगी, हमने ये भी यूज़ कर लिया और ये इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन क्या थी, जब ये लोग पहुँचे ये तीनों 9:20 पे, इन्होंने क्या देखा, जो 10 काउंटर उसमें से 4 काउंटर हैं जो कि खाली बैठे थे। 4 काउंटर खाली होने का मतलब वो ऐसे काउंटर थे जिनके पास कोई भी वेटिंग के लिए बंदा नहीं बैठा था या वो प्रोसेस नहीं कर रहे थे। मेरा 6 काउंटर ऐसे थे जो या तो किसी का एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे थे या दे वर रेडी टू स्टार्ट। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, ये 9:20 पे रेडी टू स्टार्ट वाला काउंट हो गया ना, 9:20 पे ये स्टार्ट करने वाला था। ठीक है, तो इसके तरीके से हमें वो 4 काउंटर कौन से होंगे, अगर वो मिल जाए तो उससे थोड़ी हेल्प मिल सकती है। फॉर श्योर 2 तो यूके वाले होने वाले हैं, क्योंकि यूके में तो 0 एप्लीकेशन थे, तो 2 तो ये होने वाले हैं। जो बचे हुए 2 हैं वो कौन होंगे, ठीक है, क्या वो शिंजन के हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं। शिंजन का ध्यान दो तो 9:20 पे क्या हुआ होगा, 9:20 पे ये भी आपका ऑक्यूपाइड है, काउंटर नंबर 1 भी ऑक्यूपाइड है, काउंटर नंबर 2 ऐसा है जो कि रेडी टू स्टार्ट इस प्रोसेस है, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है कि जब ये लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि when they entered the office 6 out of the 10 counter were either processing application or had finished processing and ready to start। तो 9:20 पे ये शुरू करने वाला था। ठीक है, तो ये भी यानी कि शिंजन से तो नहीं होने चाहिए कोई भी। यूके के तो हमने कर लिए, अदर्स के हो सकते हैं, यूएस के हो सकते हैं। तो यूएस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या अपने को, क्योंकि इसका टाइम स्लॉट पता है तो इससे हम निकाल सकते हैं क्या, चलो इस पे सोचते हैं। ठीक है, यूएस के लिए ले लेते हैं काउंटर 1। काउंटर 1 पे क्या हुआ होगा, पहला बंदा आया 9:09 तक बैठा। ठीक, ये पहला बंदा है। ठीक है, ऐसे ही काउंटर नंबर 2 पे अगर बात करें 9 बजे से लेके 9:10 तक दूसरा बंदा। काउंटर 3 पे भी यही होने वाला है, 9 बजे से शुरू करके 9:10 तक तीसरा बंदा। ठीक, एंड काउंटर नंबर 4 थोड़ा इधर हम लिख लेते हैं। काउंटर नंबर 4 की बात करें तो 9 बजे से शुरू करके 9:10 तक चौथा बंदा आया। ठीक, एक स्लॉट में कितने लोग आते हैं इसके यहाँ, 5 लोग आते हैं, तो 4 तो यहाँ पे अकोमोडेट होंगे। 5वां कहाँ पे आया होगा, काउंटर नंबर 1 पे गया होगा, यानी कि 9:10 से 9:20 तक 5वां एप्लीकेशन यहाँ पे इसने ऑपरेट करा होगा। छठवां कौन होगा, जो कि 9:15 बजे आया होगा, और वो कहाँ पे अकोमोडेट होगा, यहाँ पे होगा 9:15 पे, 9:15 से 9:25 तक। ये कौन है, 6th एप्लीकेशन। ये कब तक करेंगे, ये हमें 9:20 का स्लॉट चेक करना है, तो बस हम उतना थोड़ा चलाते हैं। ठीक है, फिर 9:15 से 9:25 तक। ठीक, ये कौन है, 7th नंबर का एप्लीकेंट। ठीक, फिर 9:15 से 9:25 का एप्लीकेंट, ये कौन है, 8। 9वां कौन रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि वो 9:15 बजे आके बैठा हुआ है, तो 9:20 पे इसका प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा अपने को, 9:30 पे जो कि 9th एप्लीकेंट बैठा होगा। यहाँ पे 9:25 पे ये बंदा आया है 10वां एप्लीकेंट, वो 9:15 पे आ गया था लेकिन उसने वेट करा, सारे तो ऑक्यूपाइड हैं, तो 9:25 के पे ये काउंटर खाली होगा, और ये काउंटर खाली होते ही 9:25 पे, बिकॉज 9:25 पे ये भी खाली हो रहा है, ये भी खाली हो रहा है, ये भी खोला है, बट हम क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देंगे तो हम काउंटर नंबर 2 पे इसको बैठा देंगे, यानी कि 9:25 से 9:35 तक ये जाएगा, जो कि है 10th नंबर। ठीक,
इस तरीके से अपने को चलाना है। अब 9:30 वाले आए होंगे, 9:30 वाले यहाँ पे बैठेंगे, यानी कि 11th नंबर 9:30 से 9:40 एंड सो ऑन चलता जाएगा कि भाई यहाँ से 9:35 से फिर 9:45 तक, सॉरी 9:30 से 9:40 तक, फिर यहाँ पे 9:40 से 9:30 से 9:40, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान देना था, हमें ये बोला था कि भाई जब ये लोग आए कितने बजे आए, 9:20 पे आए। जब ये 9:20 पे आए तो उन्होंने क्या देखा, 4 काउंटर खाली हैं। क्या वो यूएस का काउंटर हो सकता है? अगर ध्यान दो तो यूएस का 9:20 पे ये भी ऑक्यूपाइड है, रेडी टू स्टार्ट विथ न्यू एप्लीकेशन। ये तो खैर ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, यानी कि यूएस का भी वो नहीं हो सकता था। यानी जो दो काउंटर थे जो खाली थे वो कौन से थे, अदर्स वाले थे। यानी कि 2 काउंटर जो खाली थे अदर्स वाले थे, वो ऐसे काउंटर थे जो एक मतलब खाली बैठे थे, उनका प्रोसेस भी खत्म हो चुका था और देवर नो वन टू वेट टू स्टार्ट दियर प्रोसेस। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं जो अदर्स का जो टाइम लग रहा है, अदर्स का टाइम वो 5 मिनट से कुछ कम होना चाहिए था, बिकॉज हमें टाइम एग्जैक्ट नहीं पता। हो सकता है उन्होंने 9:15 बजे आए, ये जो ये लोग बंदे थे, ये लोग 9:15 बजे आए 2 लोग, और 9:20 पे खाली हो गए। 9:20 पे खाली हो गए तो इन्होंने, जब ये लोग पहुंचे, इन्होंने देखा कि वो तो काउंटर खाली है, देयर इज नो वन टू वेट। ऐसे ही वो 9 बजे आए होंगे 2 लोग तो 9:05 पे खाली हो गए होंगे, 9:15 पे आए हैं तो 9:20 पे खाली हो गए, 9:25 9:30 पे आए तो 9:35 पे खाली हो गए। कुछ ऐसा ही होने वाला है, बट एग्जैक्ट 5 मिनट होगा ये नहीं अपने को श्योर है। यहाँ पे ये गड़बड़ था। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, 5 मिनट, बट स्टार मार्क करूंगा क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि ये 5 मिनट है। ये हो सकता है कि 5 मिनट भी हो बट लेस देन 5 मिनट्स भी हो सकता है, यानी कि 5 और बिलो 5 होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। ठीक, लेस देन 5 मिनट से ये पता है। अब और क्या बचा, अब देखो एक तरीका ये हो सकता है कि बैठ के सारी स्केड्यूलिंग करो, जो कि कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्वेश्चंस को आंसर करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर देखते हैं, लेट्स सी कि हम और क्या निकाल सकते हैं, बिकॉज जितनी एफर्ट मार सकते थे, जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसके अराउंड जो हम सोच सकते थे हमने वो सोच लिया है। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि भाई सॉल्यूशन पे चलते हैं, मतलब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगर रिक्वायर्ड होगा तो विल पुट अप मोर थिंग्स, देखेंगे हम कि हम और क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 बोला, हाउ मेनी यूके एप्लीकेशन वर शेड्यूल्ड ऑन दैट डे। यूके एप्लीकेशन कितने थे, 0 थे, ये तो क्लियर कट आंसर है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर द टोटल टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ऑल एप्लीकेशन। देखो जानबूझ करके इसने ना मैक्सिमम वर्ड यूज करा है, मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम क्या होगा, 5 मिनट होना चाहिए, यानी कि हर एप्लीकेशन 5 मिनट में प्रोसेस हो रहा हो, तो यानी कि 5 × 40 यानी कि 200 मिनट। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, 200। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द टाइम व्हेन नंदिनी एप्लीकेशन प्रोसेस गॉट ओवर। नंदिनी का कितने बजे हो रहा है, 9:45 पे हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स बोला हुआ है, फॉल्स का मतलब ट्रू नहीं होता बेसिकली है। द एप्लीकेशन प्रोसेस वॉज कंप्लीटेड बिफोर नंदिनी एप्लीकेशन, सॉरी द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ माहिरा वॉज कंप्लीटेड बिफोर नंदिनी। नंदिनी का माहिरा से पहले खत्म हुआ। माहिरा का कब शुरू हुआ है, माहिरा का शुरू हुआ है 9:30 पे, और कब तक चलेगा, शायद 9:35 तक। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टार मार्क करता हूँ, आई एम नॉट श्योर 9:35 एग्जैक्ट होगा या उससे कम होगा। ठीक है, बट 9:35 के बियॉन्ड नहीं जा सकता। और स्टेटमेंट क्या बोला, द प्रोसेस एप्लीकेशन ऑफ नंदिनी माहिरा वॉज कंप्लीटेड बिफोर नंदिनी। ये तो यार ट्रू है, माहिरा का इन एनी केस पहले ही खत्म हो रहा है, नंदिनी का तो 9:45 पे खत्म हो रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो हम फॉल्स कंसिडर नहीं कर सकते। द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ ओस्मान वॉज कंप्लीटेड बिफोर विजय। सेम चीज ओस्मान के लिए भी कह सकते हैं, स्टार्टेड एट 9:30 बट 9:35 के पहले कहीं खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म होगा नहीं पता, 9:35 के थोड़ा पहले खत्म होगा, कितना पहले नहीं पता। हो सकता है 1 ही मिनट में इसने निपटा दिया, हो सकता है आधे मिनट में प्रोसेस कर लिया, हो सकता है 5 मिनट में प्रोसेस किया हो। ठीक है, तो हर केस में क्या देखें, क्या ये विजय से पहले कंप्लीट कर ले जा रहा है, बिल्कुल। अगर ध्यान दो तो विजय का 9:37 पे खत्म हो रहा है, बिकॉज विजय का फिक्स्ड है 9:37 पे, एंड ओस्मान का मैक्स टू मैक्स 9:35 तक जा रहा है। तो भाई ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, मतलब ओस्मान का पहले कंप्लीट हो रहा है। द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ ओस्मान वाज कंप्लीटेड बिफोर 95, ये भी बात सही है, ये तो ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या बोला हुआ है, द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ माहिरा स्टार्टेड आफ्टर नंदिनीज। माहिरा का जो एप्लीकेशन है वो नंदिनी के बाद शुरू हुआ। माहिरा का शुरू हुआ था 9:30 पे और नंदिनी का शुरू हुआ था 9:30 मतलब 9:32 पे आ गए, यानी कि ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि माहिरा का पहले शुरू हुआ है, आफ्टर नहीं, बिफोर हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फॉर ऑल यूएस एप्लीकेशन गॉट ओवर ऑन दैट डे। ठीक है, अब यूएस एप्लीकेशन वाले क्या कितने बजे खत्म हुए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा लेंदी भी है, मतलब अपने को सब पे चेक करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इसका एक सिमिलर सेट कर रखा है तो मेरे को पता है कि यार यहाँ पे ना हर स्लॉट में एक टाइम पैटर्न दिखता है। टाइम पैटर्न कैसा, जैसे पहले स्लॉट में कितने लोग थे, 5 लोग थे। उन 5 का अगर ध्यान दो तो ये 9:20 पे इन्होंने खत्म किया, यानी कि आइडियली 9:15 खत्म होना चाहिए था, बट 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, दूसरे स्लॉट में फिर 15 लोग आए, उनका कब खत्म हुआ, उनका देखो खत्म हुआ है 9:35 पे। खत्म कितना होना चाहिए था, 9:30 पे, लेकिन 9:35 तक गया, यानी कि हर स्लॉट में उनका 5 मिनट एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट कंज्यूम होने का मतलब खत्म कितने बजे होना था, 2 बजे, तो खत्म कितने बजे होगा, 9:05 पे। ठीक है, तो ये वाला सेट हमने इस तरीके से क्रैक करा। अब ये सेट के अंदर थोड़ा ये वाला पार्ट था जो बहुत ज़्यादा सोचने वाला था। ठीक है, आई वुड रेट दिस एज अ वेरी डिफिकल्ट सेट, मतलब पेपर वाले फेज में शायद नहीं होता, मतलब मेरा टाइम वैसे एग्जॉस्ट हो गया होता पहले 2 सेट के थ्रू। ठीक है, बट स्टिल फॉर लर्निंग इट इज़ अ गुड सेट, आपको ट्राई करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। इन केस अगर आपके पास अगली बार ऐसा ही सेट आ गया तो मे बी यूल बी एबल टू नाउ सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।